जमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोर, वृंदावन में धूम मचावे, बरसानेरी छोरी, ब्रिज धाम। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता। वंदे मातरम, भारत माता की जय। इस समय जो आप मूर्ति स्थापना देख रहे हैं, जो राधा और कृष्ण की प्यारी मूर्तियां धूम मचाने के लिए और अपनी कृपा बरसाने के लिए तैयार हैं। राधा कृष्ण की ये मूर्ति कैसे दिखती हैं, कैसे अपनी छटा बिखेरती हैं और कैसे देती हैं आपको अपने सुंदर नेत्रों से आशीर्वाद, देखेंगे आप उससे कुछ ही देर बाद। So we have some other devotees also. Yeah, sure, What's your sure. good name, ma'am? My name is Harshata. Okay, ma'am. From where you are? I'm from Bhadugar. Okay, you are from Bahadurgarh. What course you are doing from there? You are studying there? I'm actually currently doing BTech in computer science from Gurgaon. You are a youth of our Indian subcontinent. How are you feeling participating in these kind of religious activities? Actually, this is important for today's youth. As we can see, everyone is indulged in parties and everything. But I think this is the important thing. They should just go and pray to the temples. And this is the important part. Everyone should learn and come. So what's your wish you have made today? It's of my family's well-being and let God give them good health. So for how much time you are here in Kathal? I just came today for this special occasion that was organized by my family. So you are enjoying this? Yeah, I'm enjoying this. कैसे हैं मैम आप? I'm fine. कैसा? You will talk in English? As you wish. Okay. So ma'am, what's the occasion right now? Right now we are having Kalash Yatra because whenever we stabilize any ideal of any Hinduism lord or lordesses, before that we have a culture of having a Kalash on our heads, and we will take a route of our city to let them know that we are celebrating an occasion. Okay. So from when the normal devotees can come here and take a darshan of these It's idols? already a temple of Sita Raman, so they can come anytime, and we started our puja from 28th of January, that is Sunday, and tomorrow we are having a langar and we wind up our puja, and after that anybody can came. And Your English fluency and pronunciation is quite good. May I know your good name and what you do? I'm Sonali, and I'm a teacher by profession. In which school? Right now I am in a preschool, Glorious, and otherwise I will try later in another school. I think she must get a chance in a senior secondary school or international For school sure, also, for because sure. she's very intelligent. I can make out For from sure, for her sure. dialogue I'm right ready now. for that. Which your first preference as a school? Right now in preschool I am enjoying, and there I am as a coordinator, and right now I am enjoying there because I love to play with the kids. In which preschool? Glorious preschool. Yeah. Okay. तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मूर्ति स्थापना के अवसर पर हिंदू श्रद्धालुओं में काफी जोश है और वो एंजॉय कर रहे हैं। बात कर लेते हैं कुछ पुरुष बंधुओं से भी। जी सर, आपका नाम? पीयूष मदान। जी पीयूष जी, ये बताएं कि कैसा लग रहा है आपको आज राधा कृष्ण की बहुत मूर्ति? अच्छा फील हो रहा है। और यहाँ राधा कृष्ण जी की मूर्ति स्थापना पिछले 5 दिनों से चल रही है। 28 तारीख से यहाँ पे मूर्ति स्थापना का दिवस चल रहा है। आज भ्रमण था, जो मतलब पूरा एक कलश यात्रा के साथ एक अपना जो भ्रमण करते हैं, भगवान कृष्ण ने आज भ्रमण किया हमारे यहाँ का। उसके बाद कल सुबह यहाँ पे 10 बजे हवन और मूर्ति स्थापना का दिवस मनाया जाएगा। हमारी सारी कॉलोनी और पूरा कैथल इस स्थापना दिवस को लेके बहुत खुश है, और मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ कल सुबह यहाँ पे जो लंगर प्रसाद के लिए। तो लोकेशन एक बार बता दें सर आप। यहाँ पे श्री राम मंदिर, गली नंबर 2, 33 फुटा रोड, चिरंजीव कॉलोनी, अम्बाला रोड कहते हैं। जी, तो एक बार हम आपको ले चलते हैं उन मूर्ति स्थापना जो हो रखी है उन मूर्तियों के पास, और आपको दिखाते हैं कैसी लग रही है वो मूर्ति स्थापना से ठीक एक दिन पहले। तो आप देख रहे हैं कि राधा कृष्ण की मूर्ति कल स्थापना के लिए बिल्कुल तैयार है। स्थान चिरंजीवी कॉलोनी, मिलन पैलेस के पास, 33 फुटा रोड आपको बता ही दिया गया है। आप देख रहे हैं कि जो राधा और कृष्ण की मूर्तियां हैं उनके नेत्रों का अनावरण या पूरी तरीके से मूर्ति के दर्शन आप कर पाएंगे मूर्ति स्थापना के बाद ही। आइए हम पंडित जी से बात कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि क्या कुछ मूर्ति स्थापना के नियम रहते हैं और कितने बजे का ये कार्यक्रम रहेगा। नमस्कार पंडित जी। जी, क्या नाम है? जय श्रीमन नारायण जी। मेरा नाम पंकज शास्त्री है, मैं हरिद्वार से आया हूँ। तो आज जैसा कि आप लोगों को विदित है कि आज शोभा यात्रा निकाली गई। तो आज भगवान का क्या है, आज कल भगवान का पूजन के बाद भगवान का प्रतिष्ठापन होगा है। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा दी जाएगी मंत्रों द्वारा। और आज जो शोभा यात्रा है, शोभा यात्रा के पश्चात भगवान क्या है, आज संध्यादान, मतलब भगवान के लिए आज आराम का दिवस है। भगवान के लिए आरती के बाद भगवान को आज आराम दिया जाएगा। तदुपरांत
भगवान का सुबह पूजन होगा, पूजन के पश्चात भगवान का अभिषेक होगा, महाअभिषेक, और अभिषेक के बाद भगवान का क्या है कि प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, और उसके बाद हवन इत्यादि जो भी कार्यक्रम है, हवन के बाद जो भी आप लोगों का यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम, कीर्तन संकीर्तन द्वारा जो भी हुआ जाएगा, उसके बाद भंडारा किया जाएगा। और जय श्रीमन नारायण, बोले राधा कृष्ण भगवान की प्राण जय। प्रतिष्ठा से ठीक पहले भगवान की मूर्ति के नेत्रों को ढका क्यों जाता है और उनको खोलने की क्या विधि है? उनको इसलिए ढका जाता है क्योंकि मूर्ति में जो क्या है, हमने अभी तक उनमें प्राण नहीं डाले। सभी मूर्ति एक समान होती है। जैसा आप ये मान लीजिए, हम घर पे एक पत्थर लगाते हैं, वही पत्थर क्या होता है, नीचे लगा रहता है जो फर्श में होता है, वही ये भी एक समान सा भी पत्थर है। जब तक हम इनका पूजन इत्यादि, इनका 5 दिन का पहले पूजन होता है, उसके बाद इनमें क्या है, प्राण प्रतिष्ठा वेद मंत्रों द्वारा क्या है, भगवान को क्या है उठाया जाता है। तो इसलिए भगवान की नेत्र बंद किया जाता है। इसका मतलब ये होता है, नेत्र इसलिए बंद किए जाते हैं ताकि भगवान क्या है, जो भी हमारा कार्य हो, भगवान आराम से अपनी बंद नेत्रों से देख सके। अगर हम पहले ही भगवान के नेत्र खोल दिए जाएंगे, सभी भक्त लोग उनके दर्शन कर लेंगे। उस दर्शन के बाद जो उनमें जो दिव्य चमक वेद मंत्रों से जो बाद में खुलती है, वो चमक उनको बाद में नहीं दिखाई देती है। तो कल के कार्यक्रमों की क्या एक समय सारिणी आप बता पाएंगे कि कल किस समय भक्तों को आना है? कल सुबह तो 8 बजे तो सुबह पहले पूजन होगा। यहाँ पे देखिए जी, कैमरामैन से कहूंगा मैं दिखाएं कि पूजन विधि की जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से हो रही हैं। यहाँ पर पहले है पंचांग वेदी पूजन। पहले भगवान गणेश जी का पूजन होता है, उसके बाद कलश जी का पूजन होता है। ओमकार भगवान शंकर जी है, श्री माँ लक्ष्मी जी है, षोडश मातृका माँ भगवती के 16 रूप है। इधर से क्या है, नवग्रह है, जो हमारे ग्रह रुष्ट तुष्ट हो जाते हैं, उन ग्रहों को शांत करने के लिए क्या है, ग्रहों का पूजन किया जाता है। नवग्रह 64 योगिनी है, माँ भगवती के 64 रूप होते हैं। यहाँ पर है इधर से क्षेत्रपाल, जो हमारे सारे क्षेत्र की रक्षा करता है। यहाँ पर 49 देवता होते हैं। 49 देवताओं के पूजन के बाद वास्तु जो होता है, जो हम घर का निर्माण करते हैं, उस समय भी हम क्या है, वास्तु पूजन, जो नींव का पूजन किया जाता है, उसमें भगवान नागराज को विराजमान किया जाता है, वही भगवान वास्तु होता है। तो यहाँ पे वास्तु के पूजन के बाद सर्वतोभद्र मंडल होता है। यहाँ पे 56 देवता होते हैं और एक उनके ऊपर सबसे जो प्रधान देवता वो विष्णु जी होते हैं। तो 57 देवता माने जाते हैं। इसके बाद इनका पूजन करने के बाद क्या है, हम भगवान इधर राधा कृष्ण जी के मूर्ति के स्वरूप में चलेंगे। इनका स्नान होगा और स्नान के बाद क्या है, यहाँ पर मिस्त्रियों द्वारा पहले इनका नाप लिया जाएगा, जिस हिसाब से उनकी डीप वो जो मूर्ति है उनको क्या है, उस हिसाब से हमें वहाँ पे फिट करनी होती है। क्योंकि ये अभी क्या है, ये अधूरी है। अभी कल क्या है, यहाँ पे पहले नाप लिया जाएगा। थोड़ा सा मूर्तियों को नीचे पंचरत्न डाले जाएंगे, जिसमें भोजपत्र इत्यादि होता है, एक चांदी का सिक्का भी होता है, वो इत्यादि डालकर यहाँ पे क्या है, उनको प्रतिष्ठापन कर देंगे। उसके बाद स्नान के बाद क्या है, हम बाहर पे हवन के इत्यादि में चलेंगे। हवन वहाँ पे पूर्ण होगा। हवन इसलिए करवाया जाता है क्योंकि हवन क्या है, इस पूजा का दशांश होता है। क्योंकि इस पूजा में जो भी हमारे द्वारा कोई कमी या गलती त्रुटि रह जाती है, वो क्या है, हवन में पूर्ण हो जाती है। इसलिए हवन के बाद क्या है, हम अंदर आकर भगवान का श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार के बाद यहाँ पे पर्दा लगा के भगवान की मूर्तियों का क्या है, आंख की पट्टी खोल दी जाएगी और भगवान का दर्शन किया जाएगा सभी लोग। उसके बाद क्या है, यहाँ पर भंडारे का आयोजन है। तो हिंदू देवता, हिंदू जो धर्म है उसमें कई हजार, कई लाख, कई करोड़ भी वर्णन है कि देवी देवता हैं। तो क्या सभी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की विधि सेम रहती है या वो डिफरेंट गॉड या डिफरेंट भगवान के अकॉर्डिंग बदलती रहती है? नहीं, सभी का सेम रहता है। सभी का पहले पूजन होता है इसी प्रकार से। ये जो हमारी पूजन है, ये सबसे बड़ा पूजन माना जाता है इसको। ये मूर्ति स्थापना के लिए श्रीमद् भागवत अगर जो कोई करवाता है घर पे, वहाँ पे भी यही पूजा होती है। ये सबसे बड़ी पूजा मानी गई। इसमें 6 यंत्र होते हैं, 6 यंत्रों का पूजन होता है। इसी यंत्र से क्या है, भगवान क्या है, प्रसन्न होते हैं। और ये जो चावल की जो वेदी है, इसको बनाने में कम से कम 2 या 2.5 घंटे लगते हैं। इसमें देख लीजिए, इसमें कम से कम 18 तो लाइनें हैं। 18 लाइनों के कम से कम देख लिए। ये छोटे छोटे जो है, एक एक बिंदी है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। वो जो यहाँ पे ये सफेद इससे आकार से बने हुए शिवलिंग होते हैं, ठीक है। ये लाल उससे शिवलिंग होते हैं, सफेद आकार से शिवलिंग। मतलब यहाँ पे 56 देवता होते हैं। वो 56 देवता जो अलग प्रकार के होते हैं, जैसे तो आपने देखा कि अंबाला रोड पर चिरंजीवी कॉलोनी में श्री राम मंदिर में होने जा रही है राधा कृष्ण की अलौकिक मूर्ति स्थापना, जिसके आप भी दर्शनाभिलाषी हैं अगर तो दर्शन कर सकते हैं। कल आपके लिए सुनहरी मौका है। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, वंदे मातरम, भारत माता की जय।